आज 8 मार्च का दिन है। बाहर बहुत आंधी चल रही है। लुधियाना शहर में खड़े हैं हम और इस समय जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी लुधियाना की है, जहाँ पर एडवोकेट्स जो हैं, जहाँ पर जो स्टडी वगैरह करने के लिए आते हैं, केसेस वगैरह देखने के लिए सारी बुक्स लगी हुई हैं यहाँ पर। तो आज वुमेन डे है। वुमेन डे से जो है मनाया जाता है वुमेन एम्पावरमेंट डे के, वुमेन रिस्पेक्ट डे के रूम में। तो आज हम जहाँ पर जो वीमेन हैं, जहाँ पर जो फीमेल हैं, उनसे पूछेंगे कि आप लोग क्या सोचते हैं समाज के बारे, थोड़ा हमें बताएं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पर इस समय डिस्ट्रिक्ट बार जो है, जहाँ पर जो लाइब्रेरी है, वहीं से। तो हम मिलते हैं किसी वीमेन से। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खड़े हैं, जहाँ पर मैडम हमें मिले तो कहते क्या हाल है। मैंने कहा हमारा हाल तो ठीक है, लेकिन आज आपका हाल है। 8 मार्च है, आज 8 मार्च है, वुमेन डे है। और वुमेन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वुमेन एम्पावरमेंट डे के रूम में। मैडम या जो आर एडवोकेट वकील हैं, और आप देखें जहाँ पर अभी देखे साइट खोल कर बैठे हैं, कुछ ना कुछ अपना सर्च कर रहे हैं, जो केस वगैरह सर्च कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा उठ कर खड़े हो जाइए। 1 मिनट के लिए हम आपका समय लेंगे, क्योंकि आप जैसे जो बोल्ड लेडीज़ हैं, जो बोल्ड वुमेन हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि जो समाज है हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे वुमेन एम्पावरमेंट होगी। थोड़ा सा बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है इस लाइफ के बारे, हमारे हिंदुस्तान के बारे, लुधियाना शहर के बारे। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁੱਸਾ, ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਚਅਪ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। देखिए, उन्होंने बताया कि जो परिवार के जो मसले हैं, वुमेन के मसले हैं, वो घर पर ही सुलझा लिए जाएं। फ़ोन पर सुनते हैं या थोड़ी थोड़ी बात पर शक करना, ये कोई बात नहीं है। ये घर पर जहाँ पर जितने भी केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, डिवोर्स के केस आ रहे हैं, मैट्रिमोनियल के केस आ रहे हैं, वैसी छोटी सी बात पर बर्बादी होती है। जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। माता पिता पर बहुत ही यानी कि बेचैनी, चिंता हो जाती है बच्चों के लिए। लेकिन उसके बारे अच्छा थोड़ा जो काम है थे, जिस समय तो प्रैक्टिस करते हुए वुमेन कितनी एम्पावरमेंट है, किन्नी यानी कि फैसिलिटीज है, किन्ना के इतने स्कोर ने वुमेन ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੇਟੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਅਤੇ ਬੈਡ ਟੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਲਝਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਪਤਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੁਕਣਾ ਜ਼रूर पवेगा। थैंक यू मैडम जी ने कॉन्फिडेंस की और हमें बताया। बिल्कुल भी ये हिचके नहीं, कहते जो कुछ कह रहे हैं आप, जो कुछ मैं कह रही हूँ वही हो रहा है। बिल्कुल मैट्रिमोनियल जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है वो हमारे समाज के लिए बड़ी घातक है। अवेयरनेस जरूरी है इसके लिए। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। कुछ स्पेशल राइट दिए जाते हैं, स्पेशल सम्मान दिया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है कि वुमेन को आगे। जो हमारा जो प्रोफेशन है, जो आपका एडवोकेट्स का प्रोफेशन है, जो लॉयर हैं जहाँ पर, उनके बारे थोड़ा सा वुमेन यहाँ पर कितने सक्सेस हैं, यानी कितने कामयाब हैं इस प्रोफेशन में? सर, इस प्रोफेशन में तो सारे कामयाब ही हैं। आफ्टर ऑल हम वकील हैं। जहाँ पर यानी कि डोमिनेंट जो है इस समय यानी कि पूरा यानी कि जो होल्ड है जेंट्स का ही है, तो आप लोग जो हैं जितने वीमेन। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक काबिल वकील है वो वकील ही है, चाहे वो लेडीज़ है
चाहे वो जेंट्स है। तो आपके यहाँ कितनी की लेडीज एडवोकेट्स हैं? सर बहुत सारी हैं लेडीज एडवोकेट, हाँ बहुत कामयाब हैं जिनका रुतबा है और उनको जैसे कि कोर्ट में काफ़ी देखा जाता है कि वो काफ़ी अच्छे आर्गूमेंट्स अपने क्लाइंट को कैसे बचाती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दोनों बराबर इक्वल है, जैसे बोला जाता है कि फीमेल और मेल में कोई फ़र्क नहीं होता। तो आज वुमेन डे है, तो आप जो वुमेन घरों में बैठे हैं, लड़कियां जो अभी पढ़ रही हैं, जो +2 में है या 10th में है, या जो कुछ कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ कहते हैं हम लॉयर बनना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज दोगे, गर्ल्स को खासकर? मैं तो यही मैसेज दूंगी कि लड़कियों को आगे आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को आगे आना चाहिए, खासकर गर्ल्स को, जितनी गर्ल्स घरों में बैठी हैं उनको बाहर आना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। धन्यवाद मैडम जी। और सोनी साहब के समय हम जहाँ पर ऑफिस में खड़े हैं, तो जहाँ पर हम लॉयर मैडम से पूछना चाहते हैं कि वुमेन डे है, वुमेन एम्पावरमेंट डे है, वुमेन को आगे आकर घरों से बाहर निकल कर काम करना चाहिए, तो आप जहाँ पर कैसा महसूस करती हैं कोर्ट में आकर, जहाँ पर कैसा आपका वर्किंग है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि लोगों को पता चले कि आज वुमेन एम्पावरमेंट असल में है, या वैसे ही लोग कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट है, और जो जेंट्स है आपको आगे बढ़ने के लिए एक्साइट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि नहीं करते? Yes, definitely. I am working in the district courts in Ludhiana for the last 5 years, and my family has been very supporting me. And I think all the ladies should move out of their houses and pursue their careers. And there are a lot of opportunities in this field, and you should move out and really work hard. और जेंट्स जो आगे बढ़ने के लिए मौका देते हैं, या फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है जो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते वक्त? क्योंकि जेंट्स को हर तरह की नॉलेज होती है, वो फील्ड में रहते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन आप घर में रहती हैं, कोई क्राइम के बारे में आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, जेंट्स को सभी नॉलेज होती है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए सिविल में तो आप डॉक्यूमेंट देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन क्रिमिनल में बड़ा थोड़ा सा हार्ड होता है, इसके बारे में बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है। वंस आजकल मेल्स एंड फीमेल्स में देयर इज नो डिफरेंस। फीमेल्स आर आल्सो एट पार विद द मेल्स, रादर आई वुड से फीमेल्स आर अ स्टेप अहेड नाउ। And as far as the support is concerned, आपकी family should be supporting, then you can achieve milestones. देखिए, if your family support, you can achieve every goal. देखिए सामने सुनने से बैठे हैं, और देखिए हम जहाँ से बाहर जा रहे हैं, फिर और किसी को देखते हैं। और देखिए भाटिया साहब के जब ऑफिस में, मैडम ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है, हर कहीं इंडिया में कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट जिंदाबाद, तो आप जहाँ पर प्रैक्टिस करती हैं एज ए लॉयर, तो आप कैसा महसूस करती हैं कि ये वुमेन एम्पावरमेंट असल में हिंदुस्तान में, या फिर वैसे ही एक नाम दिया जाता है हर साल 8 मार्च को? देखो, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आज सबसे पहले विमेन डे पे सारी औरतों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बात है कि आज की औरत जो है वो आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं, बल्कि आदमियों से ज़्यादा आगे बढ़कर काम कर रही है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे औरतें कहीं आदमियों से पीछे हों। और मैं भी यहाँ पे औरतों के केसों में, औरतों की भलाई के लिए और गरीब महिलाओं की हमेशा मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ। कभी भी कोई भी किसी भी औरत के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसे कोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आगे बढ़ चढ़कर उसकी हेल्प करती हूँ। तो मैं और देखिए जहाँ पर ये कहते हैं कि आगे बढ़कर हेल्प करते हैं वुमेन की, कहीं से कहीं पर किसी जगह पर अत्याचार होता है, वुमेन पर जुल्म होता है, तो आगे बढ़कर मदद करते हैं। और क्या कह रहे थे आप? जी, मैं जो भी औरतें जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से या उनके अगर मैट्रिमोनियल कोई डिस्प्यूट होते हैं, उन लड़कियों के जो भी मेरे पास केस आते हैं, तो मैं कभी भी उनसे फ़ीस नहीं लेती हूँ और मैं उनके सारे के सारे केस फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। तो उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा, तो थोड़ा बहुत वैसे भी कोर्ट के बाहर भी फैसला करने में आप थोड़ा सा अच्छा समझती हैं कि जहाँ पर बहुत टाइम खराब होता है कोर्ट में, अगर वैसे उनको समझा दिया जाए तो कैसा रहे? जी, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि केस फाइल करने से पहले दोनों पार्टियों का अगर बैठ के निपटारा हो जाए तो कोर्ट में केस फाइल करने की ज़रूरत ना पड़े, तो ऐसी कोशिश हमेशा करती हूँ। हाँ, सभी वुमेन को आगे आना होगा, तभी जो क्राइम है, जो वुमेन की जो आज अत्याचार हो रहे हैं वो रुकेंगे, जुल्म रुकेंगे। और देखिए मेरे साथ मैडम है, तो मैंने जब भी किसी को देखता हूँ वुमेन लॉयर को, इस समय मैं कोर्ट में घूम रहा हूँ, तो ये मैडम भी मेरे को दिखाई दिए। मैडम ये वुमेन डे है, 8 मार्च है, सारे लोग जो बड़े बड़े लोग मना रहे हैं कि वुमेन को आगे आना चाहिए, वुमेन अवेयरनेस होनी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। थोड़ा सा आप बताइए कि आप वुमेन के लिए क्या कहना चाहती हैं? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि वुमेन्स को भी आगे आना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए जेंट्स से। और मतलब अगर किसी वुमेन से ज़्यादती होती है, जुल्म होता है, तो आप क्या करेंगे? जो एडवोकेट जो लॉयर उसकी मदद करेंगे? बिल्कुल करूँगी। लड़कियों को तो हमेशा हर उसमें फील्ड में आगे होना चाहिए, हमेशा ही होना चाहिए। हमेशा हम पीछे रह जाते हैं, लड़के आगे निकल जाते हैं हर फील्ड में, अब लड़कियां आगे हो रही हैं। तो आपको भी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो हमेशा खड़े हैं लड़कियों के लिए। और देखिए मैं जब भी किसी कैबिनेट में जाता हूँ, किसी वीमेन एडवोकेट्स या किसी से मिलता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैडम जी आप चिंता मत करें, हम आपको मौका देंगे, जेंट्स ही मौका देंगे लेडीज को आगे बढ़ने के लिए, तभी लोग जो हमारा वुमेन समाज है, महिला समाज आगे बढ़ेगा।
जो और एडवोकेट आप सिविल ड्रेस में बैठे हैं मेरी तरह, तो लेकिन आप वुमेन के लिए क्या करना चाहते हैं? जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में मैडम जज की कुर्सी पर बैठे हों, लेकिन इस समय ये LLB कर चुके हैं। तो हमें बताइए थोड़ा सा कि वुमेन को आगे आने के लिए क्या करना होगा, कैसे वुमेन एम्पावरमेंट आएगी, कैसे वुमेन पर जुल्म रुकेंगे, कैसे वुमेन पर अत्याचार रुकेंगे? हमारे एडवोकेट जो हैं, वुमेन एडवोकेट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? सर पहले तो सबको एजुकेटेड होना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि हर कोई अपनी बेटियों को पढ़ाए और उन्हें मोटिवेट करे कि आप आगे जाओ हर फील्ड में। यही नहीं कि एडवोकेट्स ही, हर फील्ड में लड़कियों को आगे जाना चाहिए। और देखिए कैसे बात होती है मैडम जी, देखिए पति और पत्नी दोनों रहते हैं, दोनों गुस्सा करते हैं तो आग निकलती है। तो अभी देखिए वुमेन जो होती है उनको शांत हो जाना चाहिए। पति जब गुस्से में हो, जब पत्नी गुस्से में हो तो पति को शांत हो जाना चाहिए, तभी तो शांति होगी ना। तो आपको क्या करेंगे उस समय जब पति जब गुस्से में है, तो आप क्या करेंगे? आप भी क्रोध करेंगे या शांत हो जाएंगे? जब आप भी वकील हैं तो फिर सोचेंगे मैं तो वकील हूँ, वो नहीं सर, पता क्या है, अगर नहीं सर, अगर गलत चीज़ पे आपको कोई टॉन्ट कर रहा है पर उस पे तो शांत नहीं होना चाहिए। नहीं, उसको अब ये देखो शांत करना पड़ेगा, कोई ना कोई उपाय होता ही है ना। हाँ जी। तो देखो नहीं सर, अगर आप पे क्रुएलिटी हो रही है, ठीक है, अब कोई किसी को मार रहा है, ठीक है, तो मैं उसको थोड़ी कहूँगी कि नहीं आप बर्दाश्त करो, ठीक है जी। हाँ, नोक-झोंक तो वैसे ही होती रहती है, नॉर्मल है, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें चुप भी कर जाओगे तो कुछ नहीं जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, उसमें शांत हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप पे क्रुएलिटी हो रही है या डॉरी सिस्टम है, फिर उस पे नहीं शांत होना चाहिए, आगे आना चाहिए और विरोध कर। जेंट्स को मदद करनी चाहिए। जेंट्स जो हमारे जेंट्स ही जो प्रोमिनेंट है, जहाँ पर जेंट्स का ही चलता है जितना भी, जिस समय रूल है जो हमारा मर्दों का ही है, तो उनको थोड़ा मदद करनी चाहिए लेडीज़ की आगे आने के लिए। किस चीज़ में? ये जितने भी जो समाज है हमारे जेंट्स ही है। हाँ जी। तो जेंट्स ही काउंट करता है, लेडीज ये क्या कर लेगी, वो क्या कर लेगी। नहीं सर, मेरे को नहीं लगता कि हाँ आज के लड़के ऐसे करते हैं कि टॉन्ट करते हैं। मेरे हिसाब से ये है कि वो मोटिवेट ही करते हैं कि मेरी वाइफ आगे जाए, जहाँ तक मुझे लगता है। जैसे पेरेंट्स अपनी बेटी को कहते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़ो आगे जाओ, वैसे ही हस्बैंड भी करते हैं। तो ठीक है, मैडम भी कहते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, वुमेन को आगे बढ़ना चाहिए और हमें अत्याचार या जुल्म नहीं सहने, लेकिन जहाँ पर जरूरी हो वहाँ शांति हो जाना चाहिए, पति को चाहे पत्नी को। आज वुमेन डे है, इन्हें हमारा जो दायित्व बनता है वुमेन को सम्मानित करें, सम्मान करें। धन्यवाद मैडम जी। और देखिए हम कैबिन टू कैबिन देख रहे हैं कि जो महिला एडवोकेट हैं जहाँ पर बैठे हैं हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। और देखिए हमारी चेहरी है मैडम, ये मैडम भी, आपका कहना मैडम? मीनू, देखिए मीनू जी बैठे। चेहरी तुम जहाँ पर रुक के बात करो हमारे से। वुमेन डे है आज, वुमेन एम्पावरमेंट डे है, वुमेन का हम सम्मान कर रहे हैं। वुमेन पर जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, तो आप लोग क्या करोगे उसके लिए? क्या आगे बढ़कर उनकी मदद करोगे वुमेन को? बताइए मैडम क्या करोगे आप? आज वुमेन डे है, वुमेन एम्पावरमेंट डे है, आज सम्मान डे है, आप जो मर्द हैं आपका सम्मान कर रहे हैं, बताइए क्या करोगे आप आगे बढ़कर? और देखिए मैडम आप वुमेन के साथ हैं? हाँ मैं हूँ। हाँ, तो वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, होनी चाहिए। देखिए कहते हैं होनी चाहिए, वुमेन को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, वुमेन को पूरे राइट मिलने चाहिए। ठीक है, आप बोलना सीखो मैडम, जोर जोर से बोलना सीखो। धन्यवाद। और अभी हम यहाँ पर कोर्ट में आए थे और हमने पूछा कि चलो महिला जो एडवोकेट हैं उनसे मिलते हैं, तो हमें पता चला कि मैडम प्रीति सुखीजा जी भी आज वुमेन इंटरनेशनल वुमेन डे पर उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कुछ प्रोग्राम किए हैं। तो हम लेट हो गए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी लुधियाना ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डेज ऑन 8 मार्च। प्रीति सुखीजा एंड गुरवीर सिंह चेयरमैन हैं और सेक्रेटरी हैं प्रीति सुखीजा जी, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी लुधियाना। तो देखिए अब आज जो वुमेन डे मनाया जाता है और वुमेन डे पर वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए हर जगह प्रयत्न किए जाते हैं। इस समय देखिए हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहाँ पर देखिए, जहाँ पर जो आज हम जहाँ पर कुछ वुमेन एडवोकेट से मिलने के लिए आए थे, तो जहाँ पर देखिए इंटरनेशनल डे है, जो वुमेन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और आज जुल्म जो अत्याचार होते हैं वुमेन पर अवेयरनेस के लिए, जहाँ पर जो हर साल ही जो एम्पावरमेंट के लिए 8 मार्च मनाया जाता है। इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहाँ पर हम हैं लुधियाना शहर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए थे, तो हमने सोचा कि जो वुमेन एडवोकेट हैं, जो वुमेन वकील हैं, उनका यानी कि क्या सोच है, उनकी क्या विचार हैं उनके वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन डे के ऊपर। तो हमें पूछते पूछते हमने कई एडवोकेट से पूछा कि आप क्या कह रही हैं। तो अभी हम और कोई देखते हैं कि और वुमेन मिल जाए, एडवोकेट मिल जाए। तो देखिए जहाँ पर ये जो हम धीरे धीरे करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो ग्राउंड फ्लोर है, और जहाँ पर इस समय ना जो बेल के लिए आते हैं, जो कैदी वगैरह होते हैं, जो मुलजिम होते हैं, जो हवालात में होते हैं, तो बेल के लिए उनको जहाँ पर पेशी के लिए लेके आते हैं, तो जहाँ पर जब बसेस वगैरह खड़ी है, तो जहाँ पर इस समय हम जहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आज वुमेन डे है, वुमेन एम्पावरमेंट डे है, तो जहाँ पर वुमेन
जो हमें मिले हैं उन्होंने जितना कुछ बताया, लेकिन अभी 4 बजने को हैं तो वुमेन जो है अभी घर पर जा चुकी हैं, क्योंकि वुमेन को घर का काम भी देखना होता है, कोर्ट का काम भी देखना होता है, सब काम करने होते हैं। अब ये थक गए, अब तो बंद करें यार, दलजीत चलने दे। और देखिए बस हो गई बस हम। और देखिए चलो 4-5 जो वुमेन एडवोकेट हमें मिले, उनसे हमने पूछा कि वुमेन डे, जो वुमेन एम्पावरमेंट डे है, वुमेन जो सम्मान डे है आज वुमेन के लिए मनाया गया 8 मार्च, उस दिन सभी लोग प्रण करते हैं, जेंट्स भी मनाते हैं, वीमेन भी मनाती हैं कि जो आज हमारा डे है वुमेन डे है। जेंट्स डे तो हमने कभी सुना नहीं। वुमेन डे के पर आज वुमेन को अपने पूरा सम्मान देने के लिए, पूरा अधिकार देने के लिए आज ये जो हमारा वर्ल्ड है, हिंदुस्तान है, हर कोई आगे बढ़कर एफर्ट कर रहा है। तो आज देखा कि हमने कुछ महिला एडवोकेटों ने क्या बताया, क्या होना चाहिए, उन्होंने हमको सब कुछ बताया जो वुमेन के लिए ज़रूरी है। वुमेन को आगे आना चाहिए, वुमेन को अवेयर होना चाहिए, वुमेन को घर के काम छोड़कर अपने जो लीगल राइट हैं उन पर कार्य करना चाहिए, और घर में डोमेस्टिक वायलेंस के वक्त क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आपको देखने को मिला। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।